آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں 6 ماہ مزید قید بھگتنا ہوگی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنے اثاثے چھپا، جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور الیکشن ایکٹ 174 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ جتنے کیس عمران خان پر بنے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو ہونا ہی تھا۔ سوال یہ نہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ آگے کیا کریں گے۔ ظاہر ہے ان کے وکیل اب اپیل میں جائیں گے اور ممکن ہے کہ وہ کچھ ہی دن میں باہر آ جائے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام واقعات کس سلسلے کی کڑی ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انتخاب ہوں گے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں میں PDM حکومت ختم ہو جائے گی اور نگران حکومت بنے گی جس نے 3 ماہ میں الیکشن کرانے ہوں گے۔ مگر ہر زبان پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ اکثر لوگوں کو خوف ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ یہ دونوں ہی اندازے ہیں اور کسی تجزیے کی بنیاد پر نہیں، محض اندیشے کی بنیاد پر لگاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، سیاسی صورتحال کا جب بھی تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر مستقبل کی بات کی جاتی ہے۔ الیکشن کے لیے جن چیزوں کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے۔ پہلی زمینی حقیقت ہے عوامی مقبولیت، دوسری چیز ہے PDM حکومت کی کارکردگی، تیسری اور انتہائی اہم چیز ہے اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ، اور چوتھی چیز ہے عالمی سیاست اور طاقتوں کی خواہش۔ ہم ان تمام عوامل کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور پھر اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس سال الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ نمبر 1، عوامی مقبولیت۔ دوستو، عوامی مقبولیت کے حساب سے عمران خان اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، جبکہ ان کے مخالف عوامی نفرت کا شکار ہیں۔ 9 مئی نے ان کی پارٹی تنظیم تو خراب کی ہے لیکن ان کی عوامی مقبولیت برقرار ہے۔ اگر اس سال الیکشن وقت پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دھاندلی نہیں ہوتی تو عمران خان آسانی سے حکومت بنا لیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہوں اور وہ گرفتار اور نااہل نہ ہوں جیسے پچھلے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو کیا گیا تھا۔ دوستو، لیڈر جتنا بھی مقبول ہو، اگر وہ میدان سے باہر ہو تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے، پھر ووٹر اپنا فیصلہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ عوامی مقبولیت کے تجزیے سے ہمیں پتہ چلا کہ مقبول لیڈر صرف عمران خان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بطور وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ اور عالمی طاقتوں کو قبول ہے؟ اس کا جواب ہم آگے تلاش کرتے ہیں۔ دوسری زمینی حقیقت ہے PDM حکومت کی کارکردگی۔ PDM حکومت کی کارکردگی اب کے سامنے ہے۔ صرف 1 سال کے قلیل عرصے میں ناکامیوں کی طویل داستان لکھی گئی ہے۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیش دیا گیا ہے۔ حکومتی پارٹیوں سے عوامی نفرت عروج پر ہے، لہٰذا اگر الیکشن وقت پر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی اکیلے وفاق میں حکومت نہیں بنا سکے گی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور نون لیگ کو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی پارٹی کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن اگر عمران خان میدان میں موجود رہے تو یقینی طور پر نون لیگ کو پنجاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لہٰذا وقت پر الیکشن اور عمران خان کی موجودگی ان کے لیے سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اس وجہ سے ان پارٹیز کی 2 خواہشات ہیں۔ نمبر 1، الیکشن وقت پر نہ ہو، جتنی تاخیر کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ نگران حکومت کی شکل میں موجودہ حکومت ہی چلتی رہے اور 2-3 سال کے عرصے میں کچھ کارکردگی دکھا کر عوام میں اپنی پوزیشن بہتر کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر الیکشن وقت پر ہی ہونے ہیں تو عمران خان کسی صورت میدان میں نہ ہو۔ اس کے لیے عمران خان کا نااہل ہونا اور جیل جانا ضروری ہے، جیسے پچھلے الیکشن میں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ PDM حکومت کی کارکردگی کے تجزیے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پارٹیز الیکشن وقت پر نہیں چاہتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگران حکومت کو آئینی طور پر لمبا عرصہ چلایا جا سکتا ہے؟ کیا عمران خان کو جیل میں ڈال کر جو الیکشن ہوں گے وہ عوام کو قبول ہوں گے؟ ان سوالوں کے جواب بھی ہم آگے تلاش کریں گے۔ دوستو، تیسری اور اہم ترین زمینی حقیقت جو کہ سیاسی تجزیے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ۔ دوستو، یہ بات واضح ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مخالف کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس مخالفت کی وجوہات ہم تفصیل سے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں، جس کا لنک آپ اپنی سکرین پر اوپر کونے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔
लिहाजा लग ये रहा है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस हक में नहीं कि इमरान खान की दोबारा हुकूमत बने। इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है शदीद अवामी दबाव बनाना। ये रास्ता इमरान खान ने शिद्दत से अपनाया और उन्हें इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरा रास्ता है एस्टेब्लिशमेंट से डील। इमरान इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। तीसरा रास्ता है एस्टेब्लिशमेंट पर इंटरनेशनल दबाव डालना। इसके लिए इमरान खान ने कुछ अमरीकी लॉबी फर्म से राब्ता किया है, लेकिन अब तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। इसकी क्या वजह है, हम इस पर भी बात करेंगे। उसका मतलब यह है कि इमरान खान फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट को राजी नहीं कर सके। नजर ये आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान मैदान में ना हो। इसके लिए इनका नाअहल होना और जेल जाना जरूरी है। दूसरी सूरत में निगरान हुकूमत को लंबा खींचा जाए। इसका फायदा यह होगा कि वक्त गुजरने से इमरान खान की मकबूलियत में कमी होगी और हुक्मरान पार्टियां कुछ न कुछ कारकर्दगी दिखा देंगी। इस तज्जिये से हमें 2 नताइज मिले हैं। नंबर 1, निगरान हुकूमत PDM हुकूमत की ही एक शक्ल होगी। नंबर 2, इमरान खान के खिलाफ PDM इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट का मुफाद मिलता है। दोस्तों, इस सियासी तज्जिये की चौथी और आखिरी ज़मीनी हकीकत है आलमी सियासत और आलमी ताकतों का झुकाव। आलमी ताकतों खासकर अमरीका और सऊदी अरब का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हमेशा से एक किरदार रहा है। वो नवाज शरीफ की जनरल मुशर्रफ से डील हो या बेनज़ीर की वतन वापसी, दोनों ही आलमी ताकतों के असर की वजह से मुमकिन हुई। आलमी ताकतें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं और अक्सर उनके मुफादात आपस में मैच करते हैं। अमरीका और मगरबी ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। उनके मुफाद में था कि पाकिस्तान में कोई मकबूल लीडर हुकूमत में ना हो। लिहाजा लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार भुट्टो, जनरल ज़िया और नवाज शरीफ का अंजाम आपके सामने है। इमरान खान उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब जानते हैं, इमरान खान अपनी हुकूमत में अमरीका और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को जाना पड़ा। इसकी तफसील हमारी जिस वीडियो में है, इसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। आलमी सियासत इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। मगरबी ब्लॉक को चीन की बढ़ती ताकत और रूस और चीन के इत्तेहाद से शदीद खतरा है। उन्होंने एक तरफ रूस को यूक्रेन जंग में फंसाकर उसकी जंगी ताकत को कमजोर कर दिया है, दूसरी तरफ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर चीन के गिर्द घेरातन किया जा रहा है। इन हालात में वो इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार नहीं लगते, क्योंकि इमरान खान पहले ही रूस की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर काफी हद तक आजाद फॉरेन पॉलिसी अपना चुके थे। यही वजह है कि इमरान खान की लॉबी की कोशिश भी कामयाब होने का इम्कान कम ही है। इस तज्जिये से ये नतीजा निकला कि इस वक्त आलमी ताकतों का झुकाव और मुफाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और PDM हुकूमत के मुफाद से मिलता है। इन 4 ज़मीनी हक़ाइक़ के तफसीली तज्ज़िये और उनसे नताइज अख़ज़ करने के बाद हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। पहले देखते हैं कि अगर इलेक्शन वक्त पर होने हैं तो कैसे होंगे। सियासी सूरत हाल का तज्ज़िया हमें यह बताता है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत इस कदर ज़्यादा है कि वो PDM, एस्टेब्लिशमेंट और आलमी ताकतों के ना चाहते हुए भी इलेक्शन जीत जाएंगे। PDM पार्टियां इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन में बुरी तरह पिट जाएंगी। उनके लिए इस साल इलेक्शन में जाने का वाहिद रास्ता यह है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और कुछ अरसा उनको जेल में रखा जाए। इस तरह वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे, पार्टी गैर मुनज़्ज़म रहेगी और जज्बाती वोटर घर बैठा रहेगा। सिर्फ ऐसा करके ही PDM पार्टियां मरकज़ और सूबों में इंतहाई कमज़ोर हुकूमत बना सकेंगी। लिहाजा इमरान खान को नाअहल करके जेल में डालना PDM का सियासी और इलेक्शन मुफाद है। एस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में खामोश रहकर PDM की मदद कर सकती है और आलमी ताकतें भी इस पर 1-2 बयान देने के अलावा कोई ज्यादा हरकत नहीं करेंगी। सितंबर में चीफ जस्टिस बिंदियाल के जाते ही ऐसा करना निहायत आसान होगा। लिहाजा अगर इलेक्शन इस साल होने हैं तो इमरान खान हमें लंबे अरसे के लिए जेल जाते दिखाई दे रहे हैं। वो इस गिरफ्तारी से रहा हो भी गए तो कुछ अरसे बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि उन्हें किसी भी बहाने नाअहल किया जा सकता है। याद रखें, नवाज शरीफ को महज बेटे से तनख्वाह न बताने पर नाअहल किया गया था। मसला ये है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो इलेक्शन होंगे वो अवाम की अक्सरियत कबूल नहीं करेगी। इन इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो सेलेक्टेड कहलाएगी और उसको अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी। दूसरी सूरत यानी अगर इस साल इलेक्शन नहीं होने तो क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा।
इस सूरत में निगरान हुकूमत को 2 से 3 साल चलाया जाएगा। निगरान हुकूमत पीडीएम पार्टियों से ही बनेगी। सदर ममलकत चीफ जस्टिस काजी फाइज से इमरजेंसी लगवाकर इलेक्शन मुलतवी करने होंगे। 2 से 3 साल जितना भी अरसा हुआ, इस निगरान हुकूमत को चिलाना होगा। इससे हो सकता है कि इमरान खान की मकबूलियत में कुछ कमी हो और पीडीएम पार्टियां कुछ कारकर्दगी दिखाकर अपनी कुछ साख बहाल कर लें। ऐसी सूरत में जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान और पीडीएम को लेवल फील्ड मिलेगी और काफ़ी हद तक दिलचस्प मुकाबला होगा। हो सकता है कि तब तक नवाज शरीफ भी वतन वापस आ जाए। अगर हम इस तज्जिए का खुलासा करें तो जो नताइज निकले हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इमरान खान के वकील अब अपील करेंगे और मुमकिन है कि वो कुछ ही दिन में बारह। इलेक्शन के लिए जिन चीज़ों का तज्जिया करना ज़रूरी है वो 4 हैं: अवामी मकबूलियत, पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी, एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव और आलमी सियासत और ताकतों की ख्वाहिश। अवामी मकबूलियत के हिसाब से इमरान खान इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि उनके मुखालिफ अवामी नफरत का शिकार है। पीडीएम हुकूमत चाहती है कि तो इलेक्शन वक्त पर ना हो ताकि कुछ कारकर्दगी दिखाकर अवाम में अपनी पोजीशन बेहतर की जाए। अगर इलेक्शन वक्त पर ही होने तो इमरान खान किसी सूरत मैदान में ना हो। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात कशीदा हैं। इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करने के 3 रास्ते हैं: अवामी दबाव बनाना, एस्टेब्लिशमेंट से डील और एस्टेब्लिशमेंट पर इंटरनेशनल दबाव डालना। लेकिन इमरान खान फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी नहीं कर सके, लिहाजा निगरान हुकूमत पीडीएम हुकूमत की ही एक शक्ल होगी और इमरान खान के खिलाफ पीडीएम इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट का मुफाद मिलता है। आलमी ताकतों का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हमेशा से एक किरदार रहा है और फिलहाल उनका झुकाव और मुफाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम हुकूमत के मुफाद से मिलता है। अगर इलेक्शन वक्त पर होने हैं तो इमरान खान को नाअहल करके उनको लंबा अरसा जेल में रखा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट और आलमी ताकतें पीडीएम का साथ देंगी, लेकिन इसको अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी। अगर इलेक्शन नहीं होने तो इस सूरत में इमरजेंसी लगवा कर निगरान हुकूमत को 2 से 3 साल चलाया जाएगा। ऐसी सूरत में जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान और पीडीएम को लेवल फील्ड मिलेगी। दोस्तों, ये था हमारा सियासी तज्जिया। आपके ख्याल में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं? अपने तज्जिए से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।